Okay, sorry. Uh, Now am I audible? ओके, सो मैंने अब तक जो बोला आपको सुनाई दिया या फिर नहीं, मेरा माइक बंद था? Okay, no, sorry, my mistake. Okay, so I had recommended you to download one application. Its name is Desmos. Okay, so have you downloaded that application? No, Samir hasn't. Okay, Arya hasn't. Okay, Sankalpa and Suraj, have you people downloaded the application? Okay, Suraj has downloaded that. See, it is very important for you. Okay, Arya and okay, I'll write the name in the chat box for you people. See, Sankalp, I'm talking about the application that I told you in the last class. Okay, उस एप्लीकेशन पे हम ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको फंक्शंस चैप्टर का प्रैक्टिस करने के लिए वो एप्लीकेशन यूजफुल रहेगा. ओके, सो आई हैड रिकमेंडेड यू, इफ यू आर नॉट डाउनलोडेड इट, देन यू कैन डाउनलोड इट. ओके, टुडे. सो डाउनलोड कीजिए. सो अगर आप किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो दैट वुड look like this. Okay, so its range is minus infinity to, sorry, domain is minus infinity to infinity. That means we can provide any value to that function, and a range is k to infinity. Now what is k? K is the minimum value of that function. Okay, so how we can calculate the minimum value and all these things, that comes under the quadratic equation chapter. मतलब कि इसके जो रूट्स रहेंगे, रूट्स पे डिपेंड करेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी. ओके, सो ये जो वैल्यूज है इस पे भी ये डिपेंड करता है. सो नाउ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 इज पैराबोला. नाउ दिस ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला. ओके, सो पैराबोला के लिए कुछ इक्वेशन भी इन्होंने दिया था, दैट इज let us suppose y is equals to ax square is the equation for parabola, and for this particular equation the value of x is x plus b by 2a, and value of capital Y is equals to small y plus b square minus 4ac divided by 4a. So they have calculated values like this, so you can go through this, so you will easily understand how the value of x and y came. Okay, so the most important part is this is a parabola with vertex. This is a one this is one vertex, this is second, or this is one and this is second. Okay, so there are two vertices for any parabola. Now few conditions are given, like see, d is equals to b square minus 4ac, ये हमने assume किया है. Okay, so d is equals to b square minus 4ac, this is our assumption, and based on these assumptions uh, we are drawing some conclusions. See, for a is equals to 0, so a is 0. Okay, and if d is equals to, that is b square minus 4ac is equals to 0, मतलब कि हमारे b square minus 4ac की वैल्यू अगर 0 हो जाती है for this function ax square, c, we are talking about this function only, yeah? ax square plus bx plus c, so इसका जो ग्राफ रहेगा that will be parabola. and if b square minus 4ac की अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो parabola touches x axis and y is greater than or equal to 0 for all x, that is g of x is equals to x square minus 2x plus 1. मतलब कि yeah, domain, difference between domain and range is this: domain is the set of inputs that we can give. Okay, मतलब कि हम जो कुछ भी input दे सकते हैं, that is domain, and range is after giving the input what we can get as an output, that is range. Okay, for example, let us say x square divided by x अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ. Okay, so what is the value of x that I can give as a let us say input? So I cannot put x is equals to 0. x is equals to 0 मैं पुट नहीं कर सकता ना. So if I exclude x को छोड़ के कोई भी वैल्यू अगर हम मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आ जाएगा. समझ रहे हो?
सो दिस इज रेंज, सॉरी दिस इज डोमेन। क्या डोमेन क्या हुआ? all the values, all the real values except x is equals to 0 is the domain. Now what is the range? Range means the set of output, मतलब क्या आउटपुट आ सकता है यहाँ पे? अगर मैं x is equals to 1 रखता हूँ तो 1 square 1 divided by 1 that is 1. अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 square 4 that divided by 2 that is 4 divided by 2 is 2. Okay, so that means there are several outputs, मतलब कि जैसे जैसे मैं इनपुट चेंज करूंगा कुछ आउटपुट की वैल्यूज भी मुझे आएंगी. So that is going to be our range. Okay, so domain is inputs and range is outputs. Okay, okay Samir. Okay, good. ठीक है, चलो. So see what I was talking about. D is equals to b square minus 4ac. अगर जीरो है तो पैराबोला टचेस x axis. See this is the parabola that is touching x axis and इस पैराबोला का अगर हम हमारे पास इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, ये है अगर हमारे पास इक्वेशन है. सो दिस पैराबोला इज टचिंग एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. व्हाई? बिकॉज b square minus 4ac is equals to 0. Now we will try to calculate b square minus 4ac. B is here 2. 2 square is 4. Okay, b square that means 2 square is 4 minus 4 is as it is. A is 1, a is 1 given and c is also 1. Okay, so 4 minus 4 multiplied by 1 multiplied by 1 that is equals to 0. That means one equation is given here. See, as I think you can see this, x square minus 2x plus 1 is the equation. A is equals to 1 here, b is equals to minus 2, c is equals to 1. So b square minus 4ac is equals to 0, and that's why this parabola is touching the x-axis. This is our first conclusion. Okay, now let's come to the second conclusion. If b square minus 4ac is greater than 0, that means it is positive value. Okay, b square minus 4ac अगर positive value आती है, then parabola intersects x-axis at two distinct points. Here y is negative for values of x between two roots and positive for large or small x. See, अभी अगर हम इस ग्राफ की बात करें दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, सो दिस parabola is intersecting the x-axis. See, it is intersecting here as well and here as well. So these two values are nothing but roots of this quadratic equation. Okay, this value and this value, these are two roots of this quadratic equation. And if we find out b square minus 4ac, for example, we will try to find out. Okay, so b square is 8 square, that is 64, minus as it is 4 as it is, multiplied by a is 1 and let us say what is it, 14. X square minus 8x plus 64. Okay, b square minus 4ac. No, it should be 14 for the how much? 14 for the 56, I think. Is it? So 8 is the answer. Okay, very good, Suraj. So 8 is the final answer, that is positive, that is greater than 0. So that's why this parabola is intersecting the x-axis. We can say that. Okay. Now what can be the third conclusion? If b square, that is I am writing b square minus 4ac as a d, if it is negative, let us suppose it is smaller than 0, then what will happen? The parabola will not intersect the x-axis. Okay, it will be in the upper side of the graph. Okay, so these are the three conclusions. Now let's come to the cubic function. So cube function हमने देखा है, बराबर, cube function हमने देखा है. सो क्यूब फंक्शन एंड क्यूबिक फंक्शन सेम ही है, लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि क्यूब फंक्शन जो रहता है दैट गोज थ्रू द origin, but it is not necessary or it is not must that the cubic function should also go through the origin. Okay, so cubic function कहीं से भी जा सकता है, लेकिन इसका जो ग्राफ है वो सिमिलर ही रहेगा किसके, cube function के. Okay, so what is its domain? Its domain is minus infinity to infinity. That means we can put the value of we can put any value of x. Okay, there is no limitation, minus infinity to infinity. That means it contains all the real numbers. Minus infinity to infinity contains all real numbers, and when we are putting the all these values, then
देयर मे बी इनफाइनाइट आउटपुट्स, मतलब कि आउटपुट की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। ओके, अगर आपको कोई क्यूबिक फंक्शन दिया गया है, इसमें x की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। सी इसकी ये जो रूट्स आ रहे हैं ना, कुछ भी हो सकते हैं, x की वैल्यू वॉट एवर इट कैन बी, एंड द रिजल्टेंट वैल्यू दैट इज y और वैल्यू ऑफ f ऑफ x दैट इज रेंज, रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। इसमें कोई भी लिमिटेशन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, नो फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 का हमें यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x एनीथिंग, जस्ट ट्राई एंड पुट, कुछ भी वैल्यू आप रख दीजिए तो आपको f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी ही। ऐसा नहीं है कि अनडिफाइंड आ जाए या फिर इनफाइनाइट आ जाए, ऐसा नहीं होगा ना। इफ आई इवन आई पुट x इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट विल हैपन, द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज गोइंग टू बी -1। ओके, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, सी x की वैल्यू 0 रखना मतलब क्या, मैं x एक्सिस पे 0 पे लुक आउट कर रहा हूँ कि फंक्शन y एक्सिस पे कहां पे कट करेगा। सो x इज इक्वल्स टू 0 है, दैट मींस y इज इक्वल्स टू -1 आएगा। सो सी y एक्सिस को यही फंक्शन -1 पे कट कर रहा है। ओके, लेट अस सपोज इफ my x is let us say 2. Okay, x is 2, so x cube is 8, 8 minus 1 is 7, so f of x should be 7। so y की वैल्यू जो है, अभी देखिए x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर मैं बात करूं तो, सॉरी x इज इक्वल्स टू 2 पे बात कर रहे हैं हम, नॉट नॉट ऑफ 1। ओके, सो मैं x इज इक्वल्स टू 2 की अगर ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ऊपर जाके ऐसी जगह पे कट करेगा जहां पे कि y की वैल्यू 7 रही। Okay, so this graph shows the value of x and y. So f of x is nothing but y, and it is a function of x. It is expressed in terms of x. Okay, so I hope you are understanding what I'm trying to say. Okay, please keep responding. Yeah, ठीक है. So this is how domain can be anything and range can be anything also. Like graph. Okay, so हमने ये सब तो डिस्कस कर ही लिया है. Now radical function. What is radical function? See, f of x is equals to root of x, that is x is greater than or equal to 0. so यहाँ पे जो x है, we are considering that as a positive value or it is a 0. okay, it is not negative, क्योंकि नेगेटिव यानी कि that will become imaginary. okay, and जो हमारे पास अभी ग्राफ है, जो हम जहाँ पे हम फंक्शंस ड्रॉ कर रहे हैं, that graph is both the axes are real axis. okay, x and y axis are real axis, here is not any imaginary axis, so x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है, सो x इज पॉजिटिव है, ये हमें पकड़ के चलना है। सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x, अगर हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, दैट मींस इट इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x। y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x यानी कि क्या, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 4 तो y की वैल्यू मेरी आएगी 2। समझ रहे हो, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 16 तो y की वैल्यू आएगी 4। so f of x is equals to minus root of x, sorry, root of x, that means y is equals to root of x. so how we can draw this function like this? see, this is the graph of root of x. so if I put the value, let us say x is equals to 1, x is equals to 1 मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 1 का रूट 1 ही आएगा, सो y की वैल्यू भी 1 ही आएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, सॉरी एक्स की वैल्यू मैं टू पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 2 अगर पुट करूंगा तो जो y की वैल्यू आएगी वो कुछ अलग ही आएगी, पॉइंट्स में आएगी, डेसिमल में आएगी। सो x की वैल्यू मैं 4 पुट कर देता हूँ, सो इट इज 4, देन इट्स रूट इज गोइंग टू बी 2। सो दिस इज हाउ f of x, that is y is equals to 2 आएगा। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ or this is a cubical function. now what is domain for this? see, domain is nothing but values of x। x की कौन सी वैल्यूज हम रख सकते हैं? सो हमने पहले ही बताया कि x की नेगेटिव वैल्यू तो हम रखने वाले हैं नहीं, बराबर। सो व्हाट कैन बी द डोमेन? डोमेन कैन बी 0 टू इन्फिनिटी, मतलब कि यहाँ से -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक का जो पार्ट था वो हमने निकाल दिया, क्योंकि वो हम पुटअप नहीं कर सकते एज ए वैल्यू ऑफ x। करेक्ट, सो रेंज क्या आ सकती है? रेंज कैन ऑल्सो बी 0 टू इन्फिनिटी, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है। ओके, अगर पॉजिटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाले, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव एनीवेयर। ओके, मतलब किसी भी तरीके से पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सो रेंज इज गोइंग टू बी 0 टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, सो दिस इज गिवन, मतलब यही यहाँ पे बताया गया है। नाउ फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे बता एक एग्जांपल दिया है, दैट इज एग्जांपल 6। उसमें पूछा है कि अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ
9 minus x square है. So find the domain and the range. Okay, so how we can find out? Let us see. See this, we have to consider this whole function as a x मान के चलिए. So इसकी complete function की वैल्यू जो है that should be positive. Okay, that this value cannot be negative. हमने पहले ही डिफाइन किया है ना. So 9 minus x square is going to be always greater than or equal to 0. This is fixed. Okay, that is x square minus 9 is less than or equal to 0. See, यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया. किस तरह से चेंज कर दिया? 9 को अगर आप इस तरफ भेजोगे सो इट इज गोइंग टू बी -9 और x को अगर इस तरफ भेजोगे तो इट इज गोइंग टू बी प्लस एक्स स्क्वायर. सो द साइन चेंजेस. ओके, और उसी तरह से इनकी जो इक्वेलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी. समझ रहे हो? यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे +9 है, यहाँ पे -9 है. So that is why this function is going to be less than or equal to 0. Now why we do that? See, अगर इस फंक्शन के हम रूट्स निकाले या फिर फैक्टर्स निकाले, so that is x minus 3 and x plus 3. These are the factors. Okay, x minus 3 and x minus x plus 3, these are the factors. x square minus y square के अगर हम फैक्टर निकाले तो in bracket x minus y, x plus y, these are the factors. So therefore x की वैल्यू क्या हो सकती है? -3 या फिर +3 हो सकती है. सी, therefore -3 and 3 is the domain of f of x. मतलब x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? either 3 और -3 to find range. अभी फाइंड रेंज अगर करनी है, चलिए पहले हम डोमेन वेरीफाई कर लेते हैं. ओके, सी, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू मैंने -3 पुट की तो क्या आएगा? -3 का स्क्वायर भी प्लस ही होता है. सो 9 माइनस -3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो f of x is equals to root of 0. Now root of 0 is 0. That is valid. Okay, root of 0 is 0. If I put x की value is equals to 3, then 9 minus 9 is 0. Again, it is going to be 0. That means that this is the range -3 to 2. Sorry, -3 to 3. समझ रहे हो? So this is the range कि x की इस वैल्यूज के लिए हमें एक वैलिड आउटपुट मिलेगा. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द रेंज. लेट root of 9 minus x square is equals to y. Since square root is always positive, so y is again going to be positive only, that is going to be greater than or equal to 0. Also squaring on, we get 9 minus x square is equals to y square. See, क्या कर दिया हमने? इस फंक्शन को दोनों तरीके से दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया. सो वी गेट दिस. ये स्क्वायर रेडिकल साइन चला जाएगा और यहाँ पे y की जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा. ओके, सिंस x is between 3 and 3, so that is 0. x square is 0 to 9. मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन y की जो वैल्यू है दैट इज x स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअल में वो 0 से 9 के बीच में ही आएगी. ठीक है, सो दैट इज x square is between 0 to -9 and 9 minus x square is going to be between 9 and okay, I am not audible to Sankalp. Okay, ठीक है, there might be problem in your network Sankalp. Okay, you please check it. Okay, so see, finally यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा कि y की वैल्यू हमें 0 से 3 के बीच में ही मिलने वाली है. समझ रहे हो? नाउ डोमेन क्या हुआ हमारा? -3 से लेके 3. डोमेन इज -3 से 3 तक. -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 या फिर 0 हो सकता है. 1 में माइट बी देयर, 0 और 2 और 3. मतलब -3 से 3 तक इज डोमेन. एंड व्हाट इज द रेंज? मतलब जो हम इनपुट्स की वैल्यू रख रहे हैं उसके बेसिस पे हमें मैक्सिमम आउटपुट क्या मिल सकता है? आइदर 0, 1, 2 और 3. इन मतलब 0 से लेके 3 के बीच का ही हमें आउटपुट मिलेगा. सो दिस इज द रेंज. समझ गए? अभी आप लोगों को मुझे बताइए डोमेन क्या है इस फंक्शन का, ये समझ में आया? और डोमेन के अकॉर्डिंगली रेंज क्या है ये समझ में आया? अगर ये बात आपको समझ में आई है देन वी कैन मूव फर्दर सो दैट यू विल बी इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, अगर ये नहीं समझ में आया है तो बाकी का समझना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा. बताइए सब लोग. संकल्प ने बता दिया यस, उसे समझ में आ गया.
फ्रैंकली एंड क्विकली, जल्दी। नो, सूरज को नहीं समझ में आया, ठीक है, चलिए ओके। ओके, सूरज सूरज के लिए मैं क्विकली रिवीजन करता हूँ, ठीक है। सूरज सी, 9 - x² यहाँ पे दिया गया है। सो इसमें x की वैल्यू तुम ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हो कि जिससे ये जो रेडिकल साइन के अंदर अंडर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहे हमेशा। तो हमने फाइंड आउट किया कि -3 से लेके 3 तक हम कोई भी वैल्यू रखें, अभी कुछ भी एक वैल्यू तुम पुट अप कर सकते हो, ओके। -3 से लेके 3 तक कौन सी वैल्यू आती है? -3 आती है, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, दीज आर द वैल्यूज। सो इसमें से कोई भी एक वैल्यू पुट अप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से वी पुट -2 अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे, सो -2 का स्क्वायर क्या आएगा? -2 का स्क्वायर आएगा 4। 9 - 4 कितना होता है? 5 होता है। नाउ रूट ऑफ 5 वी हैव टू फाइंड आउट। रूट ऑफ 5 जो है, रूट ऑफ 5 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, रूट ऑफ 5 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी एंड इट विल बी लेस देन 3। व्हाई? रूट ऑफ 5 की वैल्यू लेस देन 3 क्यों आएगी? क्योंकि रूट ऑफ 9 अगर 3 होता है तो रूट ऑफ 5 तो लेस देन 3 ही होगा, ओके। सो जो हम इनपुट्स की वैल्यू रख रहे हैं एज एक्स, दैट इज डोमेन, एंड आफ्टर पुटिंग द ऑल द वैल्यूज ऑफ इनपुट, व्हाट वी आर गेटिंग एज आउटपुट, दैट इज आवर रेंज। समझ रहे हो? सो -3 से लेके 3 तक की वैल्यू अगर हम पुटअप करते हैं तो हमें 0 से लेके 3 तक कोई भी आउटपुट मिल सकता है। नाउ क्यूब रूट फंक्शन, सी क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है, ओके। सो दिस इज द ग्राफ फॉर क्यूब रूट। सो ये सारे ग्राफ जो है ना, ये आप लोग अगर उस एप्लीकेशन पे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, उसको थोड़ा सा पढ़ोगे, सो इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन क्लास, ओके। सो जस्ट प्रैक्टिस दिस ग्राफ्स। सो फाइंड द डोमेन। अभी फिर से उसी तरह का हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ क्यूब क्यूब -3, देखिए x³ - 3, सॉरी। सो इसके लिए हम कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं? सी, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर x - 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इस रेडिकल साइन के अंडर की जो वैल्यू रहेगी, दैट हैज टू बी पॉजिटिव ओनली, सो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ x³ - 2³ is greater than 0, x - 2 x² plus 2x plus 4 is also greater than or equal to 0। so हमने इसको क्या कर दिया, सिर्फ एक्सपैंड कर दिया या फिर इस पे इसके फैक्टर्स निकाल दिए। इस नो नो ग्राफ इज नॉट, ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ओके। बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फंक्शन चैप्टर, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, these ग्राफ्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन ग्राफ्स के सिवाय आप लोग ये सारे चैप्टर समझ ही नहीं पाओगे, ओके। सो एग्जाम में ग्राफ नहीं पूछा जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे समझना नहीं है, ओके, ठीक है। एग्जाम में हमें कभी भी एबीसीडी नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी हमने जब पढ़ना शुरू किया था तो हमने एबीसीडी से शुरू किया था, ओके। सो नाउ कंसीडर दिस एज एबीसीडी ऑफ योर मैथमेटिक्स। मतलब आपको ये, दिस इज बेसिक फॉर यू, आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते आना चाहिए, ओके। देन एंड देन यू कैन प्ले विद द मैथमेटिक्स। yes yes we you have to understand and not draw, okay। there might be some one or two graphs, मतलब एक आध कोई ग्राफ आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बोलेगी, ओके। तो सी, और ग्राफ को भी इतनी इतनी अच्छी तरीके से समझना, इतनी बारीकी से समझना है कि मतलब आपको उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आपको आंसर करते आना चाहिए, ओके। सो यू हैव टू, यस, आपको बहुत अच्छे से ग्राफ को पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आपको ये बहुत काम आएगा जब तक आप साइंस फील्ड में हो या फिर आप मैथमेटिक्स से डील कर रहे हैं। चलो, सो अगर मैं इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर देता हूं इस फंक्शन की, तो डोमेन क्या आएगा मेरा? डोमेन आएगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी तक मैं कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकता हूं जो कि क्वाइट विजिबल भी है। देखिए, मैं अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 का क्यूब रहता है 8, 8 - 8 इज 0 विच इज एक्सेप्टेबल। 3 रखता हूं तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 - 8 दैट इज 19 विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, इजंट इट। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 का क्यूब होता है 1 एंड 1 - 8 इज -7 एंड विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। सो x की वैल्यू के लिए लिमिटेशन क्या है हमारे पास? x की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन बी एनीथिंग, मैक्सिमम वैल्यू कैन बी एनीथिंग, इजंट इट। अगर आप x की वैल्यू 10 भी रखते हो तो 10 का क्यूब आपको निकालना पड़ेगा, दैट मे बी बाय समथिंग लाइक 1000, इज इट? 1000 - 8 दैट इज 992, so it is again positive।
so there is no issue. So domain is 2 and infinity, 2 to infinity, मतलब 2 से लेके infinity तक कोई भी वैल्यू आप रखिए, you will get the valid output. So I am not getting into all these कैलकुलेशंस. ओके, ये जो कैलकुलेशंस है ये आप लोगों ने पढ़े हैं, फैक्टर्स निकालना, उसके बाद में उसके रूट्स निकालना. ओके, सो यू कैन डू दिस थिंग्स. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव आवर टाइम so that you will understand the concepts only, okay, related to this chapter. We are not going to revise the same things that you have learned before. Now rational function, what is rational function? So हर एक चीज देखिए, आपको कोई भी अगर फंक्शन दिया गया है, so at least आपके पास में एक रफ ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर मेरे पास फंक्शन दिया है, let us suppose which function we have learned, like quadratic function दिया है. okay, quadratic function दिया है, so आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी कि ग्राफ माइट बी लाइक दिस. ओके, ये रॉ स्ट्रक्चर है, मतलब दिस शुड बी इन योर माइंड. अगर आपको रूट फंक्शन दिया है, स्क्वायर रूट फंक्शन, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस माइट बी द ग्राफ. ओके, दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ ग्राफ्स. सो सिमिलरली सी, इफ rational functions are given like f of x is equals to p of x minus q divided by q of x is defined for x if q of x is not equals to 0. So obviously q of x is cannot be 0 because it will be the function that is not defined, or we can say infinity as well. Okay, so f of x is equals to 1 by x is given and x is not equals to 0. So this is the function given and 1 by x का जो ग्राफ है वो ये ग्राफ है. okay, so 1 by x जब कभी भी आपके दिमाग में आए कि 1 by x का ग्राफ क्या रहेगा, so this should be the graph. okay, so इसमें कुछ अगर वैल्यूज आप चेंज करेंगे, लाइक 1/2x भी अगर आप करोगे, सो ग्राफ सिमिलर ही रहेगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस ओनली, बट उसमें थोड़ा सा माइन्यूट चेंज आ जाएगा. किस तरह का चेंज आ जाएगा, लेट अस सी. सी, इफ 1 f of x is equals to 1 by x है, मतलब x की वैल्यू मैं रखता हूँ 1. सी, x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1. ओके, सो y की वैल्यू क्या आई मेरी, 1 ही आई. सो मैं यहाँ पे इसे मैप कर सकता हूँ. ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं, लेट अस से 2, x की वैल्यू इज 2. सी, 2 मींस व्हाट, 1/2 दैट इज 0.5, सो इट इज 0.5. y की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 है, तो 0.5 वैल्यू यहाँ पे कहीं तो आएगी, बराबर. सो दिस इज द ग्राफ. अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि 1/2x है, 1/2x है, 1/2x है, तो अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 1, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा. सी, 2 के लिए, मतलब 2 के लिए ही मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी, समझ रहे हो. सो ग्राफ में थोड़ा सा माइन्यूट चेंज हो जाएगा, लेकिन ग्राफ का जो एक जनरलाइज फॉर्म है वो सेम ही रहेगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. नाउ डोमेन क्या है, व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज all the values of real or set of real numbers except 0. सी, रियल नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया है उन्होंने डोमेन के लिए. सो मतलब क्या हो सकता है कि 0 कैन नॉट बी द इन डोमेन, मतलब 0 हम इनपुट नहीं दे सकते. नाउ रेंज कैन बी व्हाट, रेंज कैन बी r-0, मतलब आपका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा. ओके, आउटपुट कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट 0. सो this is the domain. Domain is r, that is set of real numbers minus 0. okay, and range is set of real numbers minus 0. So now let us see some properties of this function. As x tends to 0, or as x approaches to 0, f of x tends to infinity. Now see how. See, as we are going towards x is equals to 0. see, we are going towards x is equals to 0. so ग्राफ क्या हो रहा है, देखो, ग्राफ इज दिस f of x is tending towards 0, मतलब सॉरी infinity, मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसे इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है एंड दैट इज गोइंग टू द इंफिनिटी. ओके, ये ग्राफ जो है यहाँ पे एरो लगा है, इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ है. ओके, इट इज नॉट टर्मिनेटेड हियर, इट इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी. जैसे ही हम इस साइड से भी अगर आते हैं, देखिए, if we come from left side as well, then again this graph is going towards infinity. see, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है इस ग्राफ की. now this is, see what they are saying. so line x is equals to 0, that is y axis is called vertical asymptote. okay, so this
x is equals to 0, यानी कि y axis is nothing but the asymptote. Now what is asymptote? A straight line which does not intersect the curve, but as x approaches to infinity or minus infinity, the distance between the line and the curve tends to 0 is called an asymptote of the curve. मतलब कि ऐसी लाइन जो कि एक ग्राफ के पैरेलल है या फिर कर्व के पैरेलल है, बट इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंफिनिटी तक पहुंच रही है, देन उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, किसके बीच का? उस कर्व के बीच का और उस असिम्प्टोटिक लाइन के बीच का, इट इज टेंडिंग टू 0, मतलब वो कम 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 होता जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द असिम्प्टोटिक लाइन और असिम्प्टोट, वर्टिकल असिम्प्टोट. सो डिस्टेंस किस तरह से कम हो रहा है देखो. सी, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ओके, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, सो यहाँ पे डिस्टेंस इतना था, बाद में इतना हुआ, बाद में इतना कम हुआ, इतना कम हुआ, ठीक है. सी, इट इज डिक्रीजिंग. ओके, सो जैसे जैसे हम आगे चले जाएंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन, एंड दिस लाइन वी कैन से, मतलब ये जो दो लाइन है उनकी वो सबमर्ज हो चुकी है, बट दे आर नॉट सबमर्जिंग. ओके, देयर इज अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम and that tends to 0, मतलब that is not 0 but that is very close to 0. okay, so this is the first property. यही बारीक चीजें हैं जो आपको समझनी है. okay, this is the main test. now as x tends to infinity, that is, or x tends to minus infinity, f of x tends to 0, so vice versa. see, x अगर 0 भी जा रहा है तो f of x कहां पे जा रहा है? it is going to infinity. see, infinity पे जा रहा है. और जब f of x going towards 0, see, f of x is going towards 0. see, this is the graph of f of x. See, f of x की values, these are the values of f of x. so if it is tending towards 0, मतलब यहां से 4 से लेके वैल्यूज कम हो रही है एंड गोइंग टुवर्ड्स 0, सो x की जो वैल्यूज है, x एक्सिस इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. ठीक है, सो दोनों भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है. मतलब जब f of x is tending to 0, then x is tending to infinity, and if x is tending to 0, then f of x is tending to infinity. okay, so इसको पढ़िए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट कीजिए. okay, so that was all about this from my side. now find domain and range of the given function. so एक फंक्शन दिया गया है हमें, और इसकी हमें डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है. सो व्हाट कैन यू थिंक अबाउट दिस फंक्शन? सी, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो सकता है, मतलब व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ एक्स वी कैन पुट, मतलब कौन सी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, कौन सी वैल्यूज हम पुट नहीं कर सकते, दैट इज द डोमेन. समझ रहे हो? वेरी इजी. सो कैसे निकालना है? ठीक है, सो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा सोचिए कि अगर इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, अगर इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, सो the f of x is undefined, okay, or it is not defined, or it is infinite. ठीक है, so what we can say, we have to avoid the condition that is denominator is equal to 0. मतलब 4x plus 5 can never be 0. okay, this should not be 0. 4x minus 5 should not be 0. so 4x should not be minus 5, or x cannot be 5 divided by 4. समझ रहे हो? सो x की अगर वैल्यू हम अवॉइड करें, दैट इज -5/4, सो दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी 0 एनीवेयर. मतलब आप x की कोई भी वैल्यू पुट अप कीजिए एक्सेप्ट -5/4, ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा. सो दिस इज द रेंज. रेंज क्या है? ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस वैल्यू. ये वैल्यू को छोड़ के आप अगर कोई भी वैल्यू रखते हो तो ये फंक्शन की कुछ ना कुछ वैलिड वैल्यू आएगी, एंड दैट इज आवर डोमेन. समझ रहे हो? सी, डोमेन समझ में आया? संकल्प को छोड़ के बाकी लोग, संकल्प ने बता दिया कि उसे समझ में आ गया है. ओके, गुड. सो इसी तरह, ओके, ठीक है, सो इसी तरह से आप लोगों को सोचना है. नाउ सी, जैसे कि हमने फाइंड आउट किया था कि -5/4 वैल्यूज आएगी. सो -5/4 रियल नंबर के सेट में से -5/4 को अगर हम निकाल दे, सो दैट इज गोइंग टू बी डोमेन. नाउ टू फाइंड रेंज, सो रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे देखो हम लोग. सो लेट सी, y इज इक्वल्स टू गिवन फंक्शन. ओके, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर को जो है y के साथ मल्टीप्लाई किया गया है,
एंड इसको हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, जिसमें कि हम समझ रहे हैं कि दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड y इज कंसिडर्ड टू बी अ कांस्टेंट, मतलब y को हमने कांस्टेंट कंसिडर किया और x को वेरिएबल कंसिडर किया फॉर दिस इक्वेशन. नो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो सिंस x is the element of real number, that is except minus 5/4, and x is real, we get solution d is equals to b square minus 4ac. okay, so x जो है वो रियल है, तो d is equals to b square minus 4ac की वैल्यू जो रहेगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो इस थिंग को अगर सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना है. so we will get these two factors, that is y minus 2 and y minus 3, that multiplication should be greater than or equal to 0. so यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, which is not, मतलब कि जो हम लोग सोचते हैं ना उस तरह का नहीं है. सी किस तरह से, यहाँ पे हमें क्या दिया जाता था कि y माइनस 2 अगर एक ब्रैकेट में, y माइनस 3 अगर एक ब्रैकेट में, तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे y इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 3 है. दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, दिस वाज आवर कन्वेंशनल मेथड. लेकिन यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये हम कन्वेंशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग रेंज यानी कि क्या, हमें इस इक्वेशन की वैलिड वैल्यू चाहिए. ओके, नाउ सी, एक वन कंडीशन इज गिवन देयर. यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे एक साइन ऐसा है जो बताता है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी. नाउ y is smaller than or equal to 2 and y is greater than 3. now how? okay, see how, अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूं, y की वैल्यू 2 रखता हूं, तो 2 minus 2, that is going to be 0. okay, that is equals to 0, that is fine. if I put the value of, let us say y should be लेस देन 2, अगर मैं y की वैल्यू 2.5 रखता हूं, y की वैल्यू मैं 2.5 रख रहा हूं, ओके, जो कि इस कंडीशन के ऑपोजिट है. इन्होंने बोला है कि y की वैल्यू 2 से कम रखिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं y की वैल्यू 2 से ज्यादा रख रहा हूं, दैट इज 2.5 रख रहा हूं मैं. तो क्या होगा, 2.5 माइनस 2 कितना हुआ, 0.5 हुआ. 2.5 minus 2 is 0.5. See, this is 0.5 and 2.5 minus 3, that is minus 0.5. So 0.5 in one bracket and 0.5 that is minus. See, this is minus 0.5 in another bracket. So this is a minus quantity. जो कुछ भी आएगा इसका multiplication, जो कुछ भी आएगा that is going to be minus, which is not correct. It should be always positive. ठीक है, सो हम y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, वी कैन पुट y इज इक्वल्स टू, y हम 2 से छोटा रख सकते हैं या फिर y को हम 3 से बड़ा रख सकते हैं. समझ रहे हो, y को हम 3 से बड़ा रख सकते हैं या फिर 2 से छोटा रख सकते हैं. 2 और 3 के बीच में हम नहीं रख सकते. वी कैन नॉट पुट 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, ये वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर मैं y की वैल्यू 4 रख देता हूं, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 4, सो 4 minus 2 is 2. ठीक है, 4 minus 2 is 2, 4 minus 3 is 1, so 2 multiplied by 1 is positive, which is acceptable. so रेंज क्या आई, देखो, रेंज मतलब हमारा जो y का वैल्यू आएगा दैट इज माइनस इंफिनिटी से 2 तक आएगा, माइनस इंफिनिटी से 2 तक आएगा. यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट से इसे क्लोज कर दिया गया है, मतलब 2 पे आके ये रेंज खत्म हो रही है और 3 से शुरू हो रही है. सी, 3 से शुरू हो रही है एंड दैट इज अगेन गोइंग टू इंफिनिटी. मतलब ये जो बीच का जो स्पैन है 3 और 2 के बीच का, ये रेंज के अंदर नहीं आएगा. सो इन दो सेट्स का जो यूनियन है, यूनियन ऑफ दिस टू सेट्स इज नथिंग बट द रेंज. मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 2 एंड 3 से लेके इंफिनिटी. सो दिस इज द रेंज. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इज इट, बताइए, or is it confusing? okay, everybody is understanding, very good. very good. now see, exponential function. what is exponential function?
f of x is equals to a raised to x. A raised to x is an exponential function with base a and exponent x, or we can call exponent as an index as well, and a should not be 0. Okay, so this is the condition for exponential function. Now for example, f of x is equals to 2x and f of x is equals to minus x. So f of x is equals to 2 का ग्राफ देखिए किस तरह से, that is going towards positive. See, it is going towards positive. So यहाँ पे अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, so it is increasing exponential function. Okay, and if the value of x given x is negative, then it is decreasing exponential function. It is decreasing. Okay, so this is the difference between increasing and exponential, increasing and decreasing in exponential function. Now how the, where did this graph came from? ये ग्राफ आया कहां से? So 2x 2 रेस टू x है, मतलब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो 2 रेस टू 1 इज 2 होगा, बराबर. सो x की वैल्यू कहां पे है मुझे बताइए. x की वैल्यू इज दिस, x इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो या x इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? 2 रहनी चाहिए. ओके, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2. नहीं, यहाँ पे इस ग्राफ में थोड़ी सी गलती कर दी है. ठीक है, सो ये 2 की जो 2 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 2 यहाँ पे कहीं तो होना चाहिए. ठीक है, सो दिस ग्राफ इज स्लाइटली रॉन्ग. समझ रहे हो? 2 रेस टू 2 इज 4, मतलब अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूं, सी 2 अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं, okay, no, sorry, we are messing up. We are putting the value of x in this, and we are checking the graph of this. -2x का ग्राफ हम चेक कर रहे हैं. ओके, सो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं इन दिस फंक्शन, सो आई हैव टू चेक ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज 2. ठीक है, विच इज करेक्ट. नाउ इट इज करेक्ट. सॉरी, आई वाज मेसिंग इट अप. नाउ रेंज क्या हो सकती है? सॉरी, डोमेन कैन बी आर, मतलब x की आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इवन 0, मतलब आप x की 0 भी वैल्यू रख सकते हैं. 2 रेस टू 0 इज 1, करेक्ट. 2 रेस टू 0 इज 1, so 1 is here. So range is anything, sorry, domain is anything, and range is what? Range is 0 to infinite. मतलब इस फंक्शन की वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी. इट विल बी आइदर 0 और greater than 0 always. So this is exponential function. You have to remember the things about every function. Exponential function ये इस तरीके से होता है. As x tends to infinity, then f of x, that is equals to 2 raised to x tends to 0. So the graph is horizontal asymptote. See, y is equals to 0 पे, मतलब अगर x की वैल्यू, सी x की वैल्यू, ओके, सॉरी, x की वैल्यू अगर 0 पे अप्रोच हो रही है, लेट अस सी नाउ. ओके, x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट की ओर जा रही है, ओके, सो इस ग्राफ की वैल्यू जो है that is also going towards infinite. Okay, and if x की वैल्यू is going towards minus infinite, x की वैल्यू is going towards minus infinite, then this graph is going towards 0. Okay, that is tending to 0. That means here y is equals to 0, that is x is acting as an asymptotic line. X is asymptote, correct. These are the two graphs, and or these are the two curves, and it is parallel to those curves, but it is not touching those curves. So that's why x axis is acting as an asymptote here. ठीक है, so by taking the natural base e is equals to 2.718. now एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम जब भी बात करते हैं, सो a रेस टू x जो है, a रेस टू x c, ये फंक्शन हमें बहुत कम दिखाई देता है. ओके, ये फंक्शन हमें बहुत कम बार देखने को मिलता है. व्हाट वी सी इज e रेस टू x, एक्सपोनेंशियल यानी कि e रेस टू x का फंक्शन हमें ज्यादातर दिखाई देता है. सो e जो है, e is nothing but one constant. Okay, e is equals to 2.718. remember this is very very important. Okay, this is going to be with you for long term. So e की वैल्यू is 2.718, and f of x is e raised to x is similar to that of 2x in graph in appearance. So exponential function आप पकड़ के चलिए.
मतलब अगर आपको x की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है, ओके, इफ x इज पॉजिटिव देन इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग exponential function, okay, and if the value of x is negative then it is always decreasing function. So increasing function यानी कि किस तरह से देखिए, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आएगा. सी दिस इज माइनस इन्फिनिटी, इट इज कमिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड it is increasing and at last it is going towards positive infinity, okay. So this is increasing function. So how we can identify increasing or decreasing function? On the basis of value of x, मतलब x की value positive है, so it is increasing function, and if the value of x is negative then it is decreasing function, okay. So decreasing function का जो ग्राफ है वो इस तरह से रहेगा, and mostly ये जो exponential function का जो ग्राफ है that cuts the y axis in this point only, मतलब एक वैल्यू जो है ना y is equals to 1, इस पॉइंट पे ही मोस्टली e रेस टू x का ग्राफ जो है वो कट करता है. क्यों कट करता है? बिकॉज इफ सपोज लेट अस से e रेस टू x, सो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, सो किसी भी कांस्टेंट का अगर पावर 0 है, सो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 ही आती है. दैट्स व्हाई x इज इक्वल्स टू 0 पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 ही रहती है, ओके. So this is about exponential function. Now, see, here are few things given. Like if a is greater than 0, a is not equals to 1. See, a is not equals to 1. Now, why a is not equals to 1? A is equals to 1 अगर हम रखते हैं, okay, a raised to x है function given and a is equals to 1 है. So 1 raised to 1 रखिए, 1 raised to 2 रखिए, 1 raised to 3 रखिए, क्या रहेगा? It is going to be straight line always, isn't it? So it is not an exponential function. So a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, समझ रहे हो? एंड a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ओके. a की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी. नेगेटिव वैल्यूज ऑफ a के लिए भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिलहाल आपको वो सीखने की जरूरत नहीं है. Maybe because of that reason they have not given you the value of a might be minus, okay. So minus भी हो सकती है, लेकिन उसके बारे में हम मे बी 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे. अगर a की वैल्यू माइनस है, सी a की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो ग्राफ किस तरह से है? इस तरह से है. अगर a की वैल्यू माइनस रहेगी तो ग्राफ इस तरह से रहेगा, ओके. सो दिस इज हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू बी, बट उस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करते हैं. नाउ दो कंडीशन हमारे पास दिए गए हैं, a is greater than 0 and a is not equals to 0, sorry, a is not equals to 1. If a raised to x is equals to a raised to y, then x is equals to y, which is true. So ax is a 1 function. Check graph of horizontal line test, okay. So r is greater than 1, m is greater than n, then r raised to m is greater than r raised to n, which is quite obvious. मतलब जिसकी पावर बड़ी रहेगी, अगर कांस्टेंट सेम है, पावर ज्यादा है, तो वो उसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी, अगर पावर कम है तो वैल्यू भी कम आएगी, ठीक है. सो इफ r इज स्मॉलर देन 1, मतलब कि देखिए r की जो वैल्यू है दैट कैन बी 0, दैट कैन बी 0.1, दैट कैन बी 0.9 एज वेल, बट इट कैन नॉट बी 1, okay. 1 cannot be there, it can be 1.1 also. So r की वैल्यू 0 से लेके 1 भी रहेगी. In that case, for example, if I take r की वैल्यू है 2, okay, और r raised to let us say m is 3, तो ये क्या आएगा? That is going to be, I think, like this 0.08, is it? Okay. और n की वैल्यू है let us say 2, so 0. Okay, so this is greater than, I think, is it? So this is the condition you have to understand, okay. So yeah, example 9, solve this example, and what we have to find? We have to find the value of x. So how we can find out the value of x? 5 raised to 2x plus 7 is equals to 125. So 125 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब, that means 2x plus 7 is equals to 3, and after solving x is equals to -1, as easy as that, isn't it? Now similarly यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है हमें जो कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकता.
तो ये पॉजिटिव है, ये हम समझ के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने पॉजिटिव है कंसिडर किया। उसके बाद में यहाँ पे क्या किया हमने, 2x जो है वो नीचे ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई किया, उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाया, उसके बाद में उसके रूट्स निकाले, ओके। और उसके बेसिस पे हमने जो रेंज की वैल्यू है वो डिसाइड की, ठीक है। सॉरी, डोमेन, हम डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं। सो डोमेन की वैल्यू डिसाइड की। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज नॉट हार्ड, इट इज इंटरेस्टिंग। सो दैट्स व्हाई यू कैन ट्राई दिस एट होम, ओके। डोमेन इज 1 and 2। सो इस फंक्शन के लिए डोमेन इज 1, between 1 and 2, ठीक है। now let's go to the logarithmic function. So it is almost 7:52, and we are continuing till 8:30. Is it okay? Please let me know, is it okay? No? Okay, ठीक है, no problem Sankalp. We won't continue till 8:30, but we will continue till 8, okay. Oh, yeah. Sorry, in that case, I think I have to release you right now, okay? So because your class will be started in 5 minutes before it, is it? Yeah. Okay, so yes. Sorry. Chalo, ठीक है. So that's it for today, and we will see the logarithmic function in next lecture, okay? चलो, thank you. Bye everyone. Bye. चलो, ठीक है. Yeah, bye. Bye Arya. Okay.